dear students, we will start a new chapter in civics, that is what is democracy and why democracy. Okay, in this chapter it is the most prevalent form of government. Which democracy? It is the most popular form of government in the world. And India is also a democratic country, largest democratic country. Okay, so first of all we have to understand what is democracy. What do you mean by democracy? Democracy is a form of government. It is by the people, for the people, by the people, for the people, and of the people, according to Abraham Lincoln. It is a form of government in which rulers are elected by the people. The head of the state always elected by the people, not hereditary form. Hereditary form in the sense, if someone is the ruler, his or her son or daughter will be the next ruler. This is hereditary system. Okay, but here all the leaders, they are elected by the citizen or by the people and take all major decisions. Not only they are elected by the people, और क्या responsibility है उनकी? They have to take major decisions. ठीक है बेटा? Then second क्या है? Freedom to express their views. In a democratic country, the citizens, they have the rights to express their views. What is wrong, what is right. They can give their views. And they have the right to organize associations. They organize associations, form associations, and to protest against the wrong steps taken by the leader. Then elections offers a choice of fair opportunity. इलेक्शन क्या ऑफर करता है कि हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी और एक ही कैंडिडेट ऑलवेज कंटेस्ट नहीं करता है. इलेक्शन मीन्स मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन सो दैट द कॉमन पीपल हैव ऑप्शन टू चॉइस कि हमें किसको चूज करना है एंड वाई वी आर चूजिंग द पर्सन. तो चॉइस ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द करेंट रूलर. हमें कोई एक पॉलिटिकल लीडर पसंद नहीं है कि बिकॉज ही और सी इज़ नॉट डूइंग द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, सो ही शुड वांट टू चेंज. तो चेंज करने के लिए भी हमारे पास बेटर ऑप्शन होना चाहिए, तो देन वी विल चेंज. सो ये क्या देता है डेमोक्रेसी में? जैसे डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइज करने के लिए एसोसिएशन है, तो बहुत सारे लोग हैं, दोज हू आर इंटरेस्टेड, तो they can organize associations and they can contest election so that people have choice, है ना? तो all the people, those who are living in a particular country, they have equal opportunity to select the ruler. ऐसा नहीं होना चाहिए कि I am the richest fellow, I have much more money, so only I have the opportunity कि मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम पढ़े थे कि दोज हू आर अर्निंग 2-3 वेजेस इन ए डे, तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज टू कास्ट देयर वोट. बट हियर ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द रूलर. देन फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, जो लीडर इलेक्ट हुए, तो वो किसकी थ्रू चलेंगे? बेसिक रूल्स. ऑलरेडी वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? द रूल्स फॉर द कंट्री. सो द रूलर्स आर लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. What are the features of democracy? There are 4 major features. First one is your major decisions by elected leaders. Major decisions by elected leaders. Second one, free and fair elections.
Third one person, one vote and one value. Fourth one is your rule of law and respect for rights. So these are the four major features of democracy. One by one we will discuss with example. The first one is your major decisions by elected leaders. Means in democracy, the leaders are always elected by the people, and the elected leaders, they have the right to take major decisions. So in a democracy, the final decision making power किसके पास रहना चाहिए? कि those who are elected by the people. But if it is not like that, it may be dictatorship or monarchy. Dictatorship means one man rule, whatever the leader wishes, he or she can do it. That is dictatorship. Then monarchy means king's rule, and it is a hereditary system, means the son and the daughter of the king will be the next leader of that area. That is monarchy. Earlier in India, not only in India, all over the world, the ruled by mainly in this form. Okay. Then we will discuss this dictatorship or monarchy by giving the example of Pakistan. Pakistan witnessed this type of situation in 2002. General Pervez Musharraf, he was a military की captain है in October 1999. Who? General Pervez Musharraf. And what he did? He overthrew a democratically elected government. पाकिस्तान में जो elected government था उनके ऊपर कंट्रोल करके he declared himself as the chief executive. क्या डिक्लेयर किया अपने आप को? चीफ एग्जीक्यूटिव. मीन्स those who are framing the law and governing the country. And later he changed the designation. पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव बने in 1999 में. After that he declared himself as president. कब? In 2002 में. How? थ्रू रेफरेंडम क्या है? एक डायरेक्ट इलेक्शन ही टुक. डायरेक्ट इलेक्शन मेथड मीन्स डायरेक्टली द पीपल गेव देम वोट. जैसे इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑल द पीपल डायरेक्टली गेव वोट्स. सो इससे क्या होता है? इलेक्शन की बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है, महीने लगते हैं. तो बूथ प्रिपेयर होता है एंड कंस्टिट्यूएंसी होता है. हियर रेफरेंडम में डायरेक्टली द पीपल कैन गिव देयर वोट. ओके. इस रेफरेंडम में वो 2002 में ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. फिर और वो क्या किए? जब प्रेसिडेंट बन गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अर्लियर इट वाज उसको डिसमिस कर दिए एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय Pervez Musharraf according to him. Okay, so it means that Pakistan में इलेक्शन होता है but the elected members has no right at all. और क्या होता है? जैसे सिविलियन कैबिनेट, हमारे जैसे पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में भी सिविलियन कैबिनेट है. ये सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स है, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. बट वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स. तो मिलिट्री ऑफिसर्स what they wanted, they are framing that type of law by these National Security Council members. So it means those who are elected by the people, they do not have the right to frame the law. It means it is not a democratic country. Okay. Next feature, that is free and fair election. Free and fair election.
सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या होता है बेटा कि everyone has the right to give or to cast their vote. Everyone means every adult citizen of a country. जैसे हमारे कंट्री में 18 ईयर एबव everyone has the right to vote. ओ कोई एक डेली वेजर हो, रिक्शा पुलर हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, everyone has the right to cast their vote and every vote has the same value. Okay, तो होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशेंट. हम ऐसे इलेक्शन फोर्सफुली करें तो इट इज़ नॉट फ्री एंड फेयर होना चाहिए. सो वी विल रीड 2 countries एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट वन इज चाइना. चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे. चाइना में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, जस्ट लाइक आवर कंट्री. बट कौन सी ये इलेक्शन में ओनली 1 पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. हमारी कंट्री में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है. they can select the leaders, the leaders contest election, but here only one political party, that is Chinese Communist Party, है ना. if you want to, in China, if someone wants to contest election, they have to take permission, अप्रूवल लेना चाहिए. किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से. देन ओनली ए कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन. इसकी क्या मतलब है कि आप भी इसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करोगे और इसी पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे, देन ओनली यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन. ठीक है. फिर द गवर्नमेंट, अभी तक कितने मेंबर्स वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं? 3000 मेंबर्स. एंड ये 3000 मेंबर्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है. एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. सो इट इज़ ओनली 1 party रूल, है ना. तो ये भी 1 type ऑफ डिक्टेटरशिप. नेक्स्ट वन इज योर मेक्सिको. मेक्सिको में क्या होता है? ये सिंस इंडिपेंडेंस, मेक्सिको को इंडिपेंडेंट 1930 में मिला था. एंड होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 year. यहाँ पे आफ्टर एवरी 6 year इलेक्शंस होता है. एंड एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय ओनली 1 पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज PRI. दैट इज PRI पॉलिटिकल पार्टी की नेम है. ये शॉर्ट फॉर्म में. इफ विल रीड इट, क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. उल्टा है बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. ओके. द PRI यूज्ड, यही पॉलिटिकल पार्टी हर टाइम जीतते आ रहा है. व्हाई? बिकॉज ये यूज्ड मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. हर टाइम इलेक्शन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी विन करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ट्रिक यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर विनिंग ऑलवेज. सो क्या ट्रिक यूज़ करते हैं? जैसे मेक्सिको में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, दे हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स. जितने बार पार्टी मीटिंग करता है, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दे हैव टू अटेंड द मीटिंग. सेकेंड क्या है? द गवर्नमेंट टीचर्स, दोज हु आर टीचिंग इन द स्कूल, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स सिस्टम. व्हाट दे यूज? टीचर्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स, कि स्कूल में बहुत बच्चे आते हैं एंड उन्हीं के पेरेंट्स को टीचर्स फोर्स करते हैं टू वोट फॉर विच पॉलिटिकल पार्टी? PRI. रिमेंबर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRI? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. ओके. और क्या होता है यहाँ पे? मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग पार्टी. जो रूलिंग पार्टी है उसी के अंडर में मीडिया रहता है. मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, TV चैनल्स, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ PRI. तो वो जो चाहेंगे वही पब्लिश करेंगे, वो जो चाहेंगे वही दिखाएंगे. नेक्स्ट इज पुलिंग बूथ्स वेयर शिफ्टेड इन द लास्ट मिनट. जैसे कि टेक द एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पुलिंग बूथ है एंड while we are going to cast our vote, at that time before 5 minutes we got the information that here is no booth.
you have to go 5 kilometer away from this area. So this is not possible. So वही होता है, ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि इस एरिया में हमारी पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स नहीं मिलेंगे तो दे आर शिफ्टिंग, ठीक है, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते हैं लास्ट मिनट में। तो और क्या करते हैं, स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी इन आवर कंट्री ऑल्सो द पीपल दे आर spending more money during elections. Next, then the third important feature is one person, one vote and one value. Here, every adult citizen of a country having the right to vote and his or her vote valued as one, कि once in the same time no one can cast 2 times the vote, okay, and his or her vote valued as a single vote, one vote. So this is the most important feature of democracy, that one person, one vote and one value. इससे अर्लियर हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे उसमें क्या था कि एक ग्रुप की वैल्यू, फर्स्ट स्टेट जितने भी मेंबर हो उनकी वोट की वैल्यू 1 था, है ना, फिर सेकेंड स्टेट की 1, थर्ड स्टेट की 1, उसको अपोज किए थे ना। सो 1 पर्सन 1 वोट करने के लिए फ्रॉम दैट टाइम डेमोक्रेसी की द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये है। तो वी विल रीड अबाउट अदर कंट्रीज वेयर सऊदी अरबिया में 2015 तक वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो जो 50% शेयर करते हैं दे डिड नॉट हैव द राइट टू vote in Saudi Arabia. And in Indonesia the people belonging to Russian minority, जहाँ पे इंडोनेशिया में रशियन पीपल भी रहते हैं, एंड जो रशियन माइनॉरिटी है दे हैव नो वोटिंग राइट्स, मतलब दे आर लिविंग इन इंडोनेशिया बट दे डोंट हैव द राइट टू वोट। सो और एक फिजी है जहाँ पे इंडिजिनियस फिजियन हैज़ मोर वैल्यू। इनकी जो फिजी में जो नेटिव फिजियन होते हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडियन फिजियन। मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग वहीं पे सेटल हो गए हैं मोर देन 100 years, तो तब भी उनकी जो वोट की वैल्यू है वो लेस देन द नेटिव फिजियन। जैसे आई एम एन इंडियन, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स सब, मतलब मिनिमम 500 years ago आई एम लिविंग इन इंडिया, सो माई नेटिव प्लेस इज इंडिया। बट जो अदर रिलीजियस पीपल पारसीज दे केम टू इंडिया, दे सेटल्ड इन इंडिया, वो भी 300 साल हो गए इंडिया में रह रहे, बट हम उनकी वोट की वैल्यू कम करेंगे तो इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, जस्ट लाइक फिजी में क्या है, ये जो इंडियन फिजियन रहते हैं वो भी मोर देन 100 or 200 years दे आर सेटल्ड देयर, बट स्टिल देयर वोटिंग वैल्यू इज लेस देन द इंडिजिनियस फिजियन। ओके, देन it shows in these countries elections takes place, still these features are not there. Then fourth important democratic feature is the rule of law, respect for rights. What is this? Every democratic country has a constitution. In that constitution, what is a constitution? A rule of book for the country. So and in that book respect for the citizens also there. A democratic government rules within limits. जो भी लीडर सिलेक्ट हुए they have to follow within the limit, they have to follow set by the constitutional law, and citizens rights को कोई भी citizens right always should be given importance. Yes, but here we will give an example of Zimbabwe. दिस कंट्री इनको इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में, वेन 1980 में। सिंस देन तभी से एक ही रूलर हैं, वो है रॉबर्ट
मुगाबे, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है? जानू पीएफ। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज जानू पीएफ। 1980 से टिल नाउ रॉबर्ट मुगाबे is ruling the country from the political party JANU PF. Okay. Then elections always won by JANU PF. मतलब elections तो होते रहते हैं after every 5 years, but only one political party wins, that is JANU PF, and the leader it is the Robert Mugabe. He is ruling. So वो क्या करते हैं? बार बार जैसे जीतते आ रहे हैं, विन्स द इलेक्शंस, तो ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन मैनी टाइम। वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी हिसाब से चेंज करते आ रहे हैं मैनी टाइम्स, इंक्रीज हीज पावर। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के राइट्स मेरे पास है तो आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट लाइक दिस। मुगाबे क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मैनी टाइम्स ही चेंज एंड इंक्रीज हिज पावर। और उनके अंडर में किसको रखे है? टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बाय द गवर्नमेंट हियर, हु इज़ द गवर्नमेंट? रॉबर्ट मुगाबे। व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? जानू पीएफ। ठीक है, तो इसमें जो दिखाया जाएगा, जो पब्लिश होगा अकॉर्डिंग टू हिज विश ओनली। एंड वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, जिम्बाब्वे में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? टू गिव द डिसीजन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट ऑलवेज इग्नोर्ड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की जजमेंट को भी रॉबर्ट मुगाबे इग्नोर करते हैं। और तो इससे क्या पता चलता है कि जिम्बाब्वे में रियली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, जहाँ पे पीपल की राइट्स को ओवे नहीं करते हैं। सो दैट कंट्री इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन द रियल सेंस। देन नेक्स्ट वी विल रीड कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मीन्स डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, देखो वी discussed many things, then we will read about demerits. What are the demerits of democracy? That is, always as we discuss the elections के थ्रू लीडर्स सिलेक्ट होते हैं, और इलेक्शन के थ्रू लीडर्स थ्रू होते हैं, तो ऑलवेज इट इज़ कीप चेंजिंग, है ना। 5 साल कोई लीडर आए तो कुछ सोचते हैं स्टेबल बनने के लिए 2-3 years लग जाता है। आफ्टर दैट दे आर थिंकिंग व्हाट वी विल डू फॉर द कंट्री। आफ्टर दैट इट लीड्स, वो चेंज हो जाते हैं तो इट लीड्स इंस्टेबिलिटी। ठीक है बेटा। फिर और क्या होता है? देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरलिटी। ऑलवेज वी आर सेइंग इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस टेक्स प्लेस। इलेक्शन में मेन मोटो क्या होना चाहिए? कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं टू विन, तो जब विन करना हमारी मेन मोटो रहेगा तो हम हमारी मोरल वैल्यूज़ भूल जाएंगे। एनी हाउ वी हैव टू विन, सो इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। और ऑलवेज इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द डिसीजंस आर टेकन वेरी लेटली, सो डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत बार सोचना पड़ता है। फिर जैसे कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर कंट्री इन राम मंदिर कंस्ट्रक्शन, है ना, ये भी बहुत साल ले लिया बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री के मेन फीचर क्या है? डिले इन डिसीजन मेकिंग। इतने फास्ट डिसीजन लेते नहीं हैं, ऑलवेज हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। आफ्टर दैट, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, हर सबकी व्यूज़ लेना पड़ता है। आफ्टर दैट दे आर गिविंग डिसीजन, सो डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट, जो इलेक्टेड लीडर्स है उनको दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, किस लिए वो इलेक्शन में जीते, एंड व्हाट दे विल डू, व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, दे डू नॉट नो दैट। देन दैट इज़ वाई इट लीड्स करप्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू करप्शन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन। मुझे इलेक्शन में जीतना है तो मैं बहुत सारे ट्रिक अप्लाई करूँगी, तो ये क्या होता है? करप्शन को लीड करता है ना। मैं पैसा दूँ, ब्राइब दूँ, और जो मतलब बाई हुक कर कुक आई हैव टू विन, सो उसके लिए हमें करप्शन की थ्रू जाना पड़ता है।
and the most important is the common people, the ordinary people, the illiterate people. The illiterate means ignorance, and वो poor people, उनके लिए क्या है, जो पुअर एंड इग्नोरेंट है, दे आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स. क्यों? वो ब्राइब देते, कंबल बांटते, लैपटॉप बांटते, पैसे दे देते, खाना दे देते. सो दिस poor and ignorant people, they are always influenced, and they do not know what is good for them, what is good for them in long term, what is good for them, they do not know. So it is, these are the demerits. Okay, then we will read about what are the merits of democracy, why all over the world choose this form of government. This is the merits of democracy. First and most important is more accountable, कि easily accessible, accountable form of government. सारे कंट्री में सारे कॉमन पीपल के लिए यही अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. आज इन डीमेरिट्स में वी डिस्कस दैट लेट डिसीजन होता है. वाई लेट डिसीजन? बिकॉज बेटर डिसीजन इट शुड गिव. दैट इज़ वाई इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई केस आया तो इमीडिएटली डिसीजंस देते हैं. दे आर थिंकिंग, रिसर्चिंग, देन what is good for the whole country, about that they are giving the decision. That is why it improves the quality of decision. Then in a democratic country many different types of peoples are living. Just take the example of India. Many differences are there. Religion differences, ignorance means illiteracy, rich, poor, different religions, different festivals, different caste, many differences are there. So जब differences है, conflicts भी है. और democracy deal it very intelligently, कि all the people can live peacefully in the same country. So it provides a method, है ना. तो deal differences and conflict. The best example is India. We are living in unity in many diversities. है, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स में नहीं है. स्टिल वी आर लिविंग इन वन कंट्री. तो आर हियर इन डेमोक्रेसी नेक्स्ट इज नो वन इज परमानेंट लूजर. इलेक्शन टुक्स प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. तो अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द लीडर वी आर चूजिंग द लीडर. सो यहाँ पे कोई परमानेंट लूज़र नहीं है कि इस साल हार गए तो नेक्स्ट इलेक्शन में भी हारना ही है. नॉट लाइक दैट. परमानेंट लूज़र कोई नहीं है कि परमानेंट विनर कोई नहीं है. सो देयर इज़ ए होप अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, और इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स. आज देयर इज़ नो परमानेंट लूज़र एंड विनर. हर टाइम डेमोक्रेसी में चांस मिलता है, क्योंकि वॉट एवर द मिस्टेक्स वी हैव डन वी शुड चेक इट, वी शुड करेक्ट इट. ओके. देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, द कॉमन पीपल का विशेष को रेस्पेक्ट करता है. इट रेस्पेक्ट्स पीपल ओन विशेष. इट रेस्पेक्ट्स पीपल्स ओन विशेष. कि democratic is, it is a form of government which lies only on the people's own wishes. ठीक है. So last we will read the broader meaning of democracy. ठीक है. तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है? रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्टेड थ्रू, मतलब थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनना चाहिए. ओके. फिर और क्या होना चाहिए? व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड इन ए डेमोक्रेसी, इफ इट इज़ अ डेमोक्रेटिकली गवर्नड कंट्री, सो द सिटीजन्स, द नो वन गोज हंग्री टू बेड, मतलब एवरी वन हैज़ गॉट द मिनिमम नीड्स. जो मिनिमम नीड्स है, खाना, रहना, पहनना और एजुकेशन, ये सब कंट्री
प्रोवाइड करना चाहिए टू ऑल द पीपल. सो इट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. देन नेक्स्ट इज सबको इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए. एवरीवन, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमन पीपल बैठ के डिसीजन बनाए, बट कैसे? फॉर दिस वी नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन. हमें गवर्नमेंट में जो न्यू चेंजेस होता है, न्यू रूल्स बनता है, एवरीवन शुड गेट द इंफॉर्मेशन. एंड सबको क्या मिलना चाहिए? बेसिक एजुकेशन. एंड आज आई सेड कि इक्वल रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग or for surviving the life, everyone should get equal resources. resources क्या है? एजुकेशन चाहिए कि हमें कोई जॉब करना है इन फ्यूचर, दैट ऑल्सो वी कैन गेट. इक्वल रिसोर्सेज मतलब हमारी जो रहने की, खाने की, हेल्थ इशूज, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इक्वली मिलना चाहिए इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. And always the decisions involve the consultation with the consent of all those who are affected by that decision. It means the people, those who are living in that country, they are affected by the decision taken by the government. So they should involve in that decision और उनकी consent भी होना चाहिए. Then it is a truly democratic form of government. Okay, if all these points are followed, then it means that country really ruled by a democratic form of government. Okay, this is all about why democracy and what is democracy. Hope you all are able to understand. Thank you.